Good morning to all. Good morning, sir. Is the screen visible to you all? Yes, sir. Okay. In last lecture, I told about log-based recovery. And in this algorithm, we maintain a log file. And we always store log file in non-volatile memory in secondary storage devices. And in the case of any failure, we refer that log file and then perform undo and redo operations. As you all know, there are two types of modification: immediate database modification and deferred database modification. So as per the need, we perform redo and undo operations. In undo operations, all the data items is replaced by old value, and in redo operations, all the data items is replaced by new value. So generally in log file we maintain both old value and new value, and as per the requirement we replace data item with either old value or new value. Okay, that's all about log based recovery method. See this schedule, and in log file we maintain all the database operations of the transactions. So here T0 start in this schedule, a schedule, but no commit. So if any failure occurs, then we will perform undo operations. See here. Here, see this schedule. In this log file, T0 commit is not. It indicates that this transaction is not completed successfully. So we have to perform undo operations. And if we are performing undo operations, then A and B, in both data item we will store old value, and old value is 1000 and 2000. So B is restored to 2000 and A is restored to 1000. Similarly, in this log file, here T0 start and T0 commit both are in the log file. It indicates that T0 completes its execution successfully. So in this case, if any failure occurs, then we will replace value of A with new value and value of B with new value. So in this case, in the case of T0, we will perform redo operations, and since T1 commit is not in the log file, so here we will perform undo operations. So C is restored with 700 old value, but A and B, since T0 performs write operations on A and B, the A and B are set to 950 and 250 respectively. Similarly, in this case, T0 is completed successfully and T1 is also completed successfully. So here we will perform redo operations for both the transaction T0 and T1. So in this way, we recover the value of data items with the help of log file. That's why we say that it is log based recovery method. Did you get it, Mileni? Yes, sir.
Now another concept of checkpoints. Actually, checkpoints is the theoretical concepts in database management and similar to the save points. As you already know, in SQL, there are various save points. Okay, commit, rollback and save points. So save point outside marker. So here name is checkpoint. So in log file, we create various checkpoints marker. Suppose this is the checkpoint 1. Okay, then checkpoint 2. Again checkpoint 3. And what is the meaning of these checkpoints? Suppose if we are here, if failure occurs at this point, it indicates that up to this marker, all the values of the local buffer, okay, have been transferred to database. Then there is no need to see log file before this checkpoints. We will scan the log file after this checkpoints and we will perform redo and undo operations. If transaction is committed, then we will perform redo operations, and if abort, then we will perform undo operations. Did you get it? What is the meaning of checkpoints? अगर आप चेक पॉइंट्स नहीं क्रिएट करोगे तो क्या होगा, पूरी लॉग फाइल को आपको क्या करना होगा, स्कैन करना होगा एंड इट विल टेक टाइम. तो अगर आपने चेक पॉइंट्स क्रिएट कर रखा है तो चेक पॉइंट्स का अगर यहां पे फेलियर अकर हुआ तो आप क्या इसके बाद के लॉग फाइल के रिकॉर्ड्स को आप नहीं देखोगे क्योंकि ऑलरेडी वो रिफ्लेक्ट हो चुका है डेटाबेस में. आप क्या चेक पॉइंट से जहां फेलियर अकर हो रहा, फेलियर पॉइंट से लास्ट चेक पॉइंट तक आप स्कैन करोगे और फिर देखोगे कौन कौन से ट्रांजैक्शंस कमिट परफॉर्म कर चुके हैं, कौन नहीं किए हैं. जो कमिट परफॉर्म कर देंगे तो उससे रिलेटेड डेटा आइटम की वैल्यू न्यू वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी और जो एबॉर्ट हो गए हैं उससे रिलेटेड डेटा आइटम की वैल्यू ओल्ड वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी. डिड यू गेट इट? हेलो? Yes, sir. So see here, problems in recovery procedure as discussed earlier, searching the entire log is time consuming. तो इस सर्चिंग टाइम को कम करने के लिए हमने क्या कर लिया, वेरियस मार्कर क्रिएट कर लिया एंड दैट मार्कर्स आर कॉल्ड चेक पॉइंट. तो वी माइट अननेसेसरली रीडू ट्रांजैक्शंस विच हैव ऑलरेडी. अगर आप ये चेक पॉइंट नहीं करोगे तो बार बार रीडू करना पड़ेगा और वो ओवर राइटिंग होगा, ऑलरेडी वो अपडेट होके डेटाबेस में अपडेट हो गया है न्यू वैल्यू से. लेकिन अननेसेसरली आपको क्या करना होगा, रीडू ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करना होगा एंड आउटपुट देयर अपडेट्स टू द डेटाबेस, और बार बार राइट करके अपडेट करना होगा डेटाबेस को. लेकिन अगर आपने मार्कर क्रिएट कर लिया है तो आप देखोगे कि फेलियर पॉइंट से लास्ट चेक पॉइंट के बीच कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो कंप्लीट नहीं हो पाए और कौन कंप्लीट हो गए हैं. तो जो कंप्लीट हो गए हैं तो उससे रिलेटेड डेटा आइटम न्यू वैल्यू से स्टोर हो जाएगा और जो कंप्लीट नहीं हुआ है उससे रिलेटेड डेटा आइटम ओल्ड वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा. तो स्ट्रीमलाइनिंग रिकवरी प्रोसीजर बाय periodically performing checkpointing. Output all log records currently residing in main memory onto stable storage. तो कुछ भी होगा, पहले लॉग रिकॉर्ड मेन मेमोरी में होगा, फिर उसको आप क्या करोगे, स्टेबल पे करोगे. तो आउटपुट ऑल दी लोकल बफर. देन जब आप कमिट, जब भी चेक पॉइंट आ गया तो जितना भी लोकल बफर का डेटा है वो सब डेटाबेस कहाँ पे है, डिस्क पे है, तो अपने आप राइट ऑपरेशंस हो गया. इसका मतलब ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है. अब उसके बियॉन्ड जो है, मतलब उसके पहले जाने की जरूरत नहीं है. जैसे रोल बैक भी आप करते थे तो रोल बैक में क्या है, अंडू ऑपरेशन ही तो करते थे. तो वहां पे लिखते थे रोल बैक अप टू सेव पॉइंट 1, रोल बैक अप टू सेव पॉइंट 2. तो जो मार्कर बनाया है वहीं तक अंडू हो रहा है. अदरवाइज अगर आप मार्कर नहीं बनाओगे तो क्या होगा, सारा सारा अंडू होके एकदम बिगिनिंग में चले जाएंगे और फिर से आपको क्या करना होगा, रीडू करना होगा.
Did you get it? Yes, sir. So this is the meaning of checkpoints. This is the example of checkpoints. See here. There are various checkpoints. Suppose here checkpoint n-1, दिस इज n, और इसके पहले भी चेक पॉइंट है. तो अगर कोई फेलियर यहां पे आकर हो गया तो आप क्या करोगे, यहां से यहां तक केवल देखोगे, इसके पहले वाला सब डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो गया. तो अब यहां से यहां तक जब आप देखोगे तो देखोगे T2 कमिट कर दिया है, T3 कमिट कर दिया है और T4 कमिट नहीं है लॉग फाइल में. क्यों? क्योंकि यहां फेलियर अगर हो गया तो स्टार्ट तो है T4 का लेकिन एंड नहीं है. तो इस केस में T4 क्या करना होगा, जो भी डेटा आइटम इससे रिलेटेड था वहां पे आपको अंडू करना होगा और इससे रिलेटेड वाले को क्या करना होगा, रीडू करना होगा. तो एंड T1 कैन बी इग्नोर्ड, इसको हम नहीं देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये जो है, जो भी ये चेंजेस किया था वो सब चेंजेस कहाँ रिफ्लेक्ट हो गए हैं, डेटाबेस में ऑलरेडी हो चुके हैं. तो T1 कैन बी इग्नोर्ड. अपडेट्स ऑलरेडी आउटपुट टू द डिस्क ड्यू टू चेक पॉइंट. T2 and T3 redone. Why redone? Because commit already commit हो गया है. And T4 undone. क्यों? क्योंकि अभी इसका commit नहीं हुआ है. अगर चेक पॉइंट नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ता, इसको भी रीडन करना पड़ता, इसको भी करना पड़ता, बिगिनिंग से आपको करना पड़ता. तो मार्कर से हमें ये क्रिएट हो जा रहा है कि ऑलरेडी जो भी चेंजेस थे वो रिफ्लेक्ट हो गए हैं. सिर्फ हम फेलियर पॉइंट से लेके लास्ट चेक पॉइंट तक ही स्कैन करके देखेंगे कौन कौन से ट्रांजैक्शंस कंप्लीट नहीं हुए हैं और कौन से कंप्लीट हो गए हैं. तो इन दिस वे वी कैन सेव द टाइम. So this is all about the checkpoints. Now there is an algorithm for recovery purpose, and logic of that algorithm is based on the concept of checkpoints and then concept of redo operations, undo operations, and log. And sometimes a question has been asked like this: explain Aries algorithm. तो स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन अगर इस टाइप से आ गया एरीज एल्गोरिथम तो सोचते हैं ये क्या हाई फाई का आ गया है और आंसर नहीं लिखते हैं. एक्चुअली ये है ही लॉग बेस्ड रिकवरी एल्गोरिथम. दिस इज द लॉग बेस्ड रिकवरी एल्गोरिथम. फुल फॉर्म ऑफ दिस है एल्गोरिथम फॉर रिकवरी एंड आइसोलेशन एक्सप्लॉइटिंग सीमेंटिक्स. इसका फुल फॉर्म है एल्गोरिथम फॉर रिकवरी एंड आइसोलेशन एक्सप्लॉइटेशन सीमेंटिक्स. तो समटाइम्स तो क्वेश्चन आता है कि इसी टाइप से कि लॉग बेस्ड रिकवरी को एक्सप्लेन करो. कभी कभी इस टाइप से पूछ देगा कि राइट एरीज एल्गोरिथम फॉर रिकवरी एंड आइसोलेशन एक्सप्लॉइटेशन स्कीम्स. तो यहां पे आपको बताते हैं इन दिस एल्गोरिथम देयर आर 4 फेज. फेज नंबर 1 we initialize the undo list, and in phase number 2 we finalize the undo list and redo list, and then in phase number 3 one by one we will perform undo operations, and in phase number 4 we will perform redo operations. There are 4 phases in this algorithm. In this algorithm, suppose we have various transactions in the log files. Okay, this is the checkpoint n and this is the checkpoint
n minus 1. This is the checkpoint n minus 1, and this is checkpoint n. Okay, and these are the various transactions. And this is the failure point. This is the failure point. This is the transaction T0. This is the transaction T1. This is the transaction T2. This is the transaction T3. And this is T4. And this is T5. Okay. So this is here there occurs a failure. That's why this is called the failure points. This is the failure point. In pass 1, we scan the log file from the failure point to the last checkpoint. So we scan the log file in backward direction from failure point to checkpoint, last checkpoint, and here last checkpoint is n. So we scan from failure point to this checkpoint n. And here in this last checkpoint, we will say that we will see how many transactions are performing their execution. So at this line, we will say that T1, T2 and T3. These are performing their execution. So in pass 1, we initialize the undo list and redo list. In undo list, transaction is T1, then T2 and T3. And in the starting, we will initialize redo list with 5. Okay. Then in pass 2, we will finalize the undo list and redo list. This is not the perfect undo list and redo list. In pass 1, we only initialize the undo list and redo list. During the initialization, T1, T2, T3 transactions we will store in undo list and 5 we will store in redo list. Again in pass 2, we will scan this log file from last checkpoint to the failure point. First in pass 1, we scan log file in backward direction, and in pass 2, we scan log file in forward direction from the last checkpoint to the failure point. And during this, we will see if start TI belongs to log file, then undo list equal to undo list union TI. During this, what we will see, if we have any start TI,
Okay, belongs to log file. So here, if we scan this log file from this direction, from this checkpoint to this point, so we will see that here is start T4. We will find out start T4 and start T4, T5. Then we will store that transactions T4 and T5 in the undo list. Why? If any transactions, here we will see for each start Ti belongs to log file. Okay, then undo list equal to undo list union Ti. Okay, and in this step we will see that for each commit Ti belongs to log file, and then do undo list equal to undo list minus Ti, and redo list equal to redo list union Ti. And this is the begin and this is the end. This is the loop within loop, nested loop, and here also the end of for loop. Okay, so in pass 2 we will scan log file in forward direction from checkpoint N to failure point, and we will see that for each start Ti belongs to log file, then undo list equal to undo list union Ti, and for each commit Ti belongs to log file, and then within the loop we will check if commit Ti belongs to log file, then undo list equal to undo list minus Ti, and redo list equal to redo list union, and we repeat this process, and at the end we will get undo list and redo list. Did you get it, Mileni? सर बताइए। वो जब आप पढ़ा रहे थे तब पेगा की ट्रेनिंग के लिए कॉल आ गया था, तो मैं कुछ सुन नहीं पाई ये वाला। क्या नहीं सुन पाया बताओ, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? दोनों नहीं सुन पाए? यस सर। पास 1 में हम क्या कर रहे हैं, ये तो डायग्राम क्लियर हो गया, ये डायग्राम जो बना हुआ है। हेलो। यस सर। एक्चुअली लॉग फाइल में क्या है कि वी रिकॉर्ड all the operations performed by transactions we record in log file. तो log file हम यहां नहीं लिख रहे हैं, हमने एक डायग्राम से log file को रिप्रेजेंट किया है, और आपका फेलियर इस पॉइंट पे अकर हो रहा है और वेरियस मार्कर है। तो हम क्या कर रहे हैं कि आपको अंडू एंड रीडू ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, लेकिन उसको हमने क्या किया, एक एल्गोरिथम बना दिया है, एरीज एल्गोरिथम फॉर रिकवरी पर्पस, एंड इन दैट एल्गोरिथम देयर आर 4 phases और देयर आर 4 पास। पास 1 में हम क्या करते हैं कि अंडू लिस्ट एंड रीडू लिस्ट को इनिशियलाइज करते हैं। कैसे इनिशियलाइज करते हैं? हम स्कैन करते हैं फ्रॉम फेलियर पॉइंट टू लास्ट चेक पॉइंट। तो आप फेलियर पॉइंट से लास्ट चेक पॉइंट की तरफ जाओगे तो यहां पे जब आप आ गए तो देखिए इस पॉइंट पे कौन कौन से ट्रांजैक्शंस एक्टिव हैं। तो आप देखिए एक तो ये लाइन क्रॉस कर रहा है, T1 का लाइन है, T2 का है, T3 का है। तो यहां पे हमें कुछ नहीं करना है, T1 T2 T3 लिख दिए और रीडू में 5 कर देंगे।
क्योंकि रीडू लिस्ट में कुछ नहीं है, कोई इसमें स्टेप्स है नहीं। तो अंडू लिस्ट में 3 ट्रांजैक्शंस आ गया, रीडू लिस्ट में 5 आ गया। अब सेकेंड पास में हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे लास्ट चेक पॉइंट से लेके फेलियर पॉइंट तक, इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम स्कैन करेंगे इसी सेम लॉग फाइल को। अब स्कैन करते समय यहां पे लिखा है अगर कोई ट्रांजैक्शन का स्टार्ट टीआई मिल गया, तो जब आप यहां पे स्कैन कर रहे थे तो किस किस ट्रांजैक्शंस का स्टार्ट टीआई मिलेगा, एक तो स्टार्ट T4 मिल जाएगा, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है और दिस इज एंड पॉइंट है, तो इसका स्टार्ट पॉइंट मिल गया, और T5 का भी स्टार्ट पॉइंट मिल गया। तो ये कह रहा है कि लॉग फाइल में अगर स्टार्ट टीआई मिल रहा है तो अंडू लिस्ट में हम क्या करेंगे, उस टीआई को ऐड कर देंगे। डिड यू गेट इट? मिले नहीं? Yes. और सर साइमल्टेनियसली अगर कोई आपको ट्रांजैक्शंस का कमिट मिल जा रहा है लॉग फाइल में, तो उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे टीआई से, और उसी ट्रांजैक्शंस को कहां पे ऐड कर देंगे, रीडू लिस्ट में कर देंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि नहीं जो लॉजिक है? मिले नहीं? सर इसमें पास 1 में जब अंडू लिस्ट लिए T1 T2 T3, तो T4 T5 भी तो अंडू होंगे क्योंकि अभी वो कमिट अरे नहीं अभी हुए। अभी आ जाएगा, क्यों परेशान हो रहे? सेकंड स्टेप तो अभी नहीं ना आपने एल्गोरिथम का किया है। सेकंड स्टेप क्या कर रहा है, कह रहा है फॉर ईच स्टार्ट टीआई बिलोंग्स टू लॉग फाइल, तो अंडू लिस्ट इक्वल टू अंडू लिस्ट यूनियन टीआई, एंड फॉर ईच कमिट टीआई बिलोंग्स टू लॉग फाइल, अंडू लिस्ट इक्वल टू अंडू लिस्ट माइनस टीआई, एंड रीडू लिस्ट इक्वल टू रीडू लिस्ट यूनियन टीआई। जब आप इसको पास 2 को एग्जीक्यूट कर दोगे तो फाइनल अंडू लिस्ट एंड रीडू लिस्ट मिलेगा। समझ में आया? ओके सर। यस सर। तो अब आप जब इसको स्कैन कर रहे हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो आप देख रहे हो T4 का स्टार्ट मिल गया, T5 का स्टार्ट मिल गया, तो ये दोनों अंडू लिस्ट में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे कि नहीं? यस सर। तो इसको एग्जीक्यूट करोगे तो अंडू लिस्ट में क्या आ जाएगा, नाउ इन अंडू लिस्ट वी हैव T1 T2 T3 T4 T5। T5। लेकिन अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, अब हम देखेंगे फॉर ईच कमिट टीआई। तो आप देखो किसका किसका कमिट टीआई मिल रहा है, T1 का मिलेगा कमिट टीआई, T3 का कमिट टीआई मिलेगा, एंड T4 का T4। कमिट टीआई मिलेगा। तो उसको हम 1 बाई 1 क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे। यहां से T1 का अंडू कर लिस्ट दिया, में से। T3 का कर दिया, एंड T4 का कर दिया। तो ये डिस्कार्ड होके कहां ऐड हो जाएगा, सी हियर, undo list equal to undo list minus ti and redo list equal to redo list union ti। तो अब आपके undo list में क्या बचेगा पास 2 के बाद, बताइए? undo list में क्या मिला, ये तो डिस्कार्ड हो जाएगा ना, T2 एंड T2 T5। T5, एंड रीडू लिस्ट में क्या मिलेगा, क्योंकि ये डिस्कार्ड होके कहां आ जाएगा, रीडू लिस्ट में जाएगा T1 हाँ। T3 T4। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये तो आपने देख के बता दिया था। अगर मिलियंस ऑफ दी ट्रांजैक्शंस होगा तो क्या देख के बता दोगे आप? नो हेलो, सर। क्लियर हुआ कि नहीं? तो पास 2 के यस सर। लॉजिक से क्या होगा कि आपको ये फाइनलाइज होके आ गया कि अंडू लिस्ट में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस होंगे एंड रीडू लिस्ट में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस होंगे। अब शायद आप एग्री हो, देख लो फेलियर पॉइंट में कौन से जो है ट्रांजैक्शंस अंडू लिस्ट में आना चाहिए, T2 एंड T5, और रीडू T5 लिस्ट में कौन आना चाहिए, T1 T3 T4। तो ये तो देख के T4। आपने बता दिया, लेकिन ये एल्गोरिथम है ना, मिले नहीं? यस सर। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग सेकेंड पास आपको क्या मिल रहा है, फाइनल लिस्ट ऑफ द अंडू लिस्ट एंड रीडू लिस्ट। डिड यू गेट इट? यस सर। नाउ
पास 3 में आप क्या करोगे, अनडू ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, एंड पास 4 में क्या करोगे, रीडू लिस्ट परफॉर्म, मतलब रीडू ऑपरेशन परफॉर्म करोगे 1 बाय 1। और जिन जिन ट्रांजेक्शन्स का अनडू लिस्ट परफॉर्म हो जाएगा, अनडू ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, उसको डिस्कार्ड करते रहेंगे। और ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि अनडू लिस्ट एम्प्टी ना हो जाए एंड रीडू लिस्ट एम्प्टी ना हो जाए। और अगर ये दोनों में एम्प्टी मिल गया तो आफ्टर पास 3 1 by 1 we will perform undo operations and discard from the undo list, and then pass 4 we perform redo operations and discard that transactions from the redo list. pass 3 कब स्टॉप होगा, जब undo list एम्प्टी हो जाएगा, एंड पास 4 कब स्टॉप होगा, जब redo list एम्प्टी हो जाएगा। Did you get it? यस सर। तो अब आप लिखिए, मैं लॉजिक लिखने जा रहा हूं पास 3 का। पहला पास जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में स्कैन हुआ था, दूसरा वाला किस डायरेक्शन में हुआ था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एंड पास 3 भी क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में परफॉर्म होगा। तो दिस पास इज मेड व्हाइल स्कैनिंग द लॉग फाइल इन रिवर्स डायरेक्शन। और कहां से स्टार्ट करेंगे, फेलियर पॉइंट से, एंड टिल द अनडू लिस्ट गेट्स एम्प्टी। अब यहां पे लास्ट चेक पॉइंट हम नहीं लिख रहे हैं, टिल द अनडू लिस्ट एम्प्टी। आप स्कैन करोगे लॉग फाइल को फ्रॉम फेलियर पॉइंट in the backward direction until the undo list gets empty। अब उसके लिए आप क्या करोगे, ये लिखोगे for each ti a old value and new value। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा लॉग फाइल में ये होगा ti a ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू। अब यहां पे आप लिखोगे, अगेन लूप ले लोगे एंड लूप के अंदर लिखोगे डू इफ ti belongs to undo list, then a की वैल्यू हो जाएगी ओल्ड वैल्यू, एंड फॉर ईच start ti belongs to log file if ti belongs to undo list, then undo list equal to undo list equal to undo list minus ti and end। अब क्या हो रहा है कि यहां पे हम इस डायग्राम में आ जाइए, यहां से इस पॉइंट से फेलियर पॉइंट से आप जो है रिवर्स डायरेक्शन में स्कैन करोगे लॉग फाइल को, और इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, स्टार्ट टी आई। ठीक है, पहले तो आप देखोगे टी आई ए ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू है एंड टी आई बिलोंग्स टू अंडू लिस्ट। तो इधर आप देख लीजिए अंडू लिस्ट में कौन कौन से हैं, T2 एंड T5 T5। तो आप यहां पे जब स्कैन कर रहे हो तो T2 एंड T5 दोनों के डेटा आइटम की वैल्यू किससे रिप्लेस करोगे, ओल्ड वैल्यू से करोगे कि नहीं, हेलो। यस सर, ओल्ड वैल्यू से। और फिर आप इनका स्टार्ट देखोगे कि स्टार्ट है या नहीं। तो आप जब यहां पे जा रहे हो तो इसका लॉग फाइल में स्टार्ट मिल जाएगा कि नहीं T4 का, और T2 Yes, का भी sir. क्या होगा, स्टार्ट मिल जाएगा। तो जैसे इनका स्टार्ट मिल गया लॉग फाइल में और वो ट्रांजैक्शन अंडू लिस्ट में है, तो आप क्या करोगे, अंडू लिस्ट इक्वल टू अंडू लिस्ट माइनस टी आई कर दोगे। तो स्कैन करते समय पहले आपको क्या मिला, T4 का स्टार्ट मिला,
तो T4 को आप क्या कर दोगे, अरे अंडू में T5 है, T5 का स्टार्ट मिला, आपने T5 माइनस कर दिया रहे थे, और स्कैन करते करते जैसे स्टार्ट T2 का मिला आप उसको भी क्या करोगे, माइनस कर दोगे। इसके बाद क्या होगा, जैसे एम्प्टी लिस्ट हो गई अंडू की, आप वहीं पे स्टॉप कर दोगे पास 3 को। डिड यू गेट इट? यस सर। अब पास 4 में कुछ नहीं करना है। पास 4 में क्या करना है, पास 4 में आप स्कैनिंग करोगे लास्ट चेक पॉइंट से किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप टू फेलियर पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे पास 4 में डायरेक्शन फिर चेंज हो जाएगी, कहां से कहां करोगे, लास्ट चेक पॉइंट टू फेलियर पॉइंट। फॉर ईच टी आई ए ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू, आप देखोगे टी आई बिलोंग्स टू, यहां पे अंडू लिस्ट की जगह क्या लिख दोगे, रीडू लिस्ट। अगर टी आई बिलोंग कर रहा है रीडू लिस्ट में, देन ए की वैल्यू किससे रिप्लेस होगी, बताइए मिलेनी। हेलो, न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू, ये ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है, सिर्फ इस एल्गोरिथम को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ए में आप क्या करोगे, न्यू वैल्यू स्टोर कर दोगे। अब यहां पे क्या देखोगे, फॉर ईच स्टार्ट की जगह क्या होगा, फॉर ईच कमिट देखेंगे ना। अब यहां पे आप क्या देखोगे, कमिट देखोगे। तो फॉर ईच कमिट कॉमा टी आई बिलोंग्स टू लॉग फाइल, एंड इफ टी आई बिलोंग्स टू रीडू लिस्ट, यहां पे आप लिख दोगे इफ टी आई बिलोंग्स टू रीडू लिस्ट, देन यहां पे क्या हो जाएगा, रीडू लिस्ट इक्वल टू रीडू लिस्ट माइनस टी आई। अब आप यहां पे देखिए रीडू लिस्ट में T1 T3 T4 थे, तो जब आप यहां से स्कैन कर रहे हो, अब यहां से स्कैन करना हम शुरू करेंगे और इस डायरेक्शन में स्कैन करेंगे यहां तक, तो आप देखो स्कैन करते समय सबसे पहले किसका कमिट मिल गया, T1 का। हेलो, मिले नहीं? यस सर। अब T1 का कमिट मिला, और T1 किस में है, रीडू लिस्ट में है कि नहीं है? यस सर है। है। तो आप इससे रिलेटेड डेटा आइटम की वैल्यू क्या करोगे, न्यू से रिप्लेस कर दोगे और फिर इसको डिस्कार्ड कर दोगे, तो ये रीडू लिस्ट से डिस्कार्ड हो जाएगा कि नहीं? यस सर। देन आप किसका देखोगे, कमिट किसका मिला, T3 का मिला, तो T3 से रिलेटेड डेटा आइटम की वैल्यू न्यू वैल्यू से रिप्लेस कर दोगे और ये भी डिस्कार्ड हो। देन स्कैन करते समय किसका कमिट मिला, T4 का, और आप इससे रिलेटेड डेटा आइटम की वैल्यू को न्यू वैल्यू से रिप्लेस किया, एंड देन डिस्कार्ड T4 ट्रांजैक्शन। और जैसे रीडू लिस्ट मतलब एम्प्टी हो गया, वी विल स्टॉप द पास नंबर 4, and in this way we can recover all the things. Hello, यस सर। did you get this algorithm? यस सर। If you know the concept of checkpoints, log file, and then redo and undo operations, then this algorithm is very simple. Okay. सर इस पे न्यूमेरिकल आते हैं सॉल्व करने के लिए? अभी तक नहीं, मतलब एल्गोरिथम ही पूछ देता लॉग बेस्ड रिकवरी मेथड, न्यूमेरिकल तो अभी तक नहीं आया, लेकिन अगर बना भी दिया तो आप कर लोगे। ठीक है, तो ये मतलब आपके लिए लॉग बेस्ड रिकवरी मेथड हो गया फॉर बोथ टाइप ऑफ द अपडेशन, deferred modification and immediate modification, whether system is performing deferred updation or immediate updations. And through this algorithm we are performing redo and undo operations. Okay, now I am going to conclude this algorithm. In this algorithm there are 4 passes. In pass 1 we will scan from
failure point to last checkpoint, and we will initialize the undo list and redo list. And in pass second, we scan this log file from the checkpoint to the failure point in forward direction, and we will finalize the undo list and redo list. And in pass 3, again we will scan log file from the failure point to the log file in reverse direction until the undo list gets empty. And in this pass, we will perform undo operations of each the transactions of undo list, and one by one we discard that transactions from the undo list. And if undo list gets empty, we will stop the pass 3. And in pass 4, we scan from last checkpoint to the failure point, and we will perform redo operations for each transactions of the redo list, and then discard that transactions from the redo list. And when we get redo list empty, we will stop the pass number 4. And this is log based recovery method, our algorithm for recovery and isolation exploitation semantics. And in this algorithm, we use all the concepts, immediate updation concepts, then deferred updation concepts, checkpoints. And if you will not mark the things, then you have to scan all the log file, and maybe there occurs the repetition of the redo operations. And without checkpoints, if you scan the log file, then there occurs the wastage of time. To save the times, we will create various checkpoints, and we scan the log files from the failure points to the last checkpoint. Now I hope you all understood this simple algorithm log based recovery method. If you have any confusion, then you can ask the question. Nileni. Hello. No sir, समझ आ गया. आ गया? Very Yes good. sir. Now time is over, and let me download the attendance.